A very good morning to all of you class. So today is our first class relating with the class 9 biology. So before starting our class, there are some instructions that I want to share with you. The instructions are keep your pencil and your pen as well as your copies, your books, sectors with yourself to note down the important terms and important points and definitions as well. So be punctual class. Now we will start our first lecture with us chapter Number one, relating with the biology. The name of the chapter is Introduction to Biology. I repeated. Today we will focus towards the chapter number one, relating with your biology book. With the name of the chapter is the Introduction to Biology. So today we will focus towards its subtopic. The subtopic are division and the branches of biology. Division and the branches of biology. So the name of the chapter is the Introduction to Biology, means here we will focus and discuss about the biology introduction. आइडेंटिफाई करेंगे ये कि बायोलॉजी क्या है, किस तरह की स्टडी करते हैं बायो में, कैसा इंट्रोडक्शन होगा इसमें, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डिविजन्स हैं और उसमें क्या क्या ब्रांचेस आप पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू क्लास. सो नाउ वी विल स्टार्ट इट्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में. द फर्स्ट वन इज डिफाइन बायोलॉजी, मीन्स इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ द क्लास यू विल able to define biology and the major branches of biology. The second thing is that you have to know about the branches of biology. Here we're talking about the simple branches and there are the major branches of biology. So there are two objectives that we are going to share with you. Now, first of all, the subtopics of this chapter, which is the introduction to biology. So the first subtopic is the division of biology. Okay, so before the division, there are some important instruction that I want to share with you, that in the biology, we will discuss about life. Bio means life, logy means to study. So basically the word biology is relating with the study of life and the observation to the life or to the living organisms. So basically, class, what is the life? Life cannot be defined as properly, but on the basis of life processes, it can be defined or identified through following functions of the living organism. What are these functions of the processes? The processes are digestion, just like a digestion, respiration, metabolism, movement, growth, irritability, reproduction, development and excretion as well. So basically class, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं when we talk about the biology. Biology हम इस वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको जब सबसे पहले सेपरेट आउट करते हैं. स्प्रेड जब करेंगे उस वर्ड को तो हमारे पास दो वर्ड्स बनते हैं, दो टर्म्स आती हैं. द फर्स्ट वन इज द बायो. द मीनिंग ऑफ द बायो इज द लाइफ एंड द लॉजी. लॉजी मीन्स द स्टडी या ऑब्जर्वेशन या थॉट. मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उस पर ऑब्जर्वेशन करना और उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, रिलेटिंग विद द बायोलॉजी कहलाता है. ठीक है जी, रिलेटिंग विद द बायोलॉजी. सो बेसिकली बायोलॉजी के अंदर हम बायो यानी कि लाइफ की स्टडी करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपकी इन्वायरमेंट में लिविंग पाई जाती हैं तो उसके बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है. सो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो फर्स्ट तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किसी भी बायोलॉजी में जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं वो उसका लाइव होना, लिविंग होना मस्ट है. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई चीज़ कैसे लिविंग है और कोई सी चीज़ कौन सी किस तरह से नॉन लिविंग है. सो बेसिकली क्लास, कुछ हमारे पास प्रोसेसेस ऐसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन आइडेंटिफाई द दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मीन्स दिस टाइप ऑफ द थिंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग बॉडी. सो बेसिकली क्लास कुछ ऐसे ये तकरीबन 9 प्रोसेसेस हैं. इन प्रोसेस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये प्रोसेस किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमको मिले, सो इट इज मीन्स कि वो उसके अंदर क्या है, आपके पास वो लाइफ है, देयर इज अ लाइफ, यानी कि उसके अंदर लाइफ मौजूद है, यानी कि वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो बेसिकली क्या क्या प्रोसेस है जिसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके दैट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली सबसे पहले है आपके पास डाइजेशन. अगर किसी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो बेसिकली डाइजेशन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है किसकी, कि वो आपकी बॉडी कैसी है, वो लिविंग बॉडी है. ठीक है, जिस बॉडी का आप जिक्र कर रहे हैं वो लिविंग बॉडी है. इसके अलावा रेस्पायरेशन का प्रोसेस, डेफिनेट रेस्पायरेशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कोई चीज़ रेस्पायर करती है दैट इज अ सिम्टम, यानी कि वो किस चीज़ का साइन है, वो उसका साइन है कि वो लिविंग बॉडी है. इसके अलावा मेटाबॉलिज्म है, मूवमेंट है, यानी कि मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम अपनी बात करें एज अ ह्यूमन बॉडी तो हमारे पास क्या है, मूवमेंट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इजीली मूव कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम लिविंग से रिलेटेड यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो बेटा प्लांट्स के अंदर भी आपके पास मूवमेंट होती है, जस्ट लाइक अ टैक्टिक मूवमेंट जो टुवर्ड्स दी सनलाइट की मूवमेंट, ये सब आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि आपके पास जो प्लांट्स भी होते हैं वो क्या है, वो लिविंग बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। सेम एज इट इज ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिस भी बॉडी में होता है वो आइडेंटिफाई की जाती है दैट टाइप ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली अगर कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ग्रो करता है, ग्रोथ में यानी कि उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है या डेवलप करता है, तो या तो उसके अंदर आपके पास वो क्या आइडेंटिफिकेशन है, देयर इज़ अ लाइफ। तो यानी कि जाहिर सी बात है वहाँ लाइफ होगी, हाँ जिंदगी मौजूद है या लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो, तभी तो वो ग्रो कर रहा है, तभी तो वो डेवलप कर रहा है। ओके, डेवलपमेंट और ग्रोथ में थोड़ा फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्रोथ आपके पास बाद आफ्टर द बर्थ जो आप ग्रो करते हो उसको ग्रोथ कंसिडर की जाती है। बिफोर द बर्थ आपके पास जो आप ग्रो कर रहे थे यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस आती है एम्ब्रियो के अंदर वो डेवलपमेंट में कंसीडर की जाती है। और इसके अलावा बेटा एक और प्रोसेस है आपके पास विच इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस आपको पता है, द पास आउट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द किडनी। सो बेसिकली क्लास ये भी एक तरह का प्रोसेस है, इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल किसी भी बॉडी के अंदर से रिमूव आउट हो बाय द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसेस, वी कॉल दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बॉडी है वो लिविंग बॉडी है या वहाँ पर लाइफ मौजूद है, और उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। सो लिटिल बिट भी इसमें आता है, इस तरह से रिप्रोडक्शन भी हमारे पास आता है इसी के अंदर। जिस बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होगी वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द बॉडी इज अ लिविंग बॉडी। क्या होती है रिप्रोडक्शन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दो में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो आपके पास किस में आता है, रिप्रोडक्शन में आता है। मीन्स उसके अंदर क्या है, आपके पास रिप्रोडक्शन हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रहा है, उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली क्लास जैसे हम एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है किसके अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस। वायरस के अंदर हम कहते हैं कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं जो कहती हैं कि आपके पास जो वायरस है इट इज़ नॉट अ लिविंग। कुछ रिसर्च ऐसे हैं जो कहती हैं कि आपके पास जो वायरस है वो लिविंग बॉडी नहीं है, कुछ कहती हैं कि लिविंग है। सो बेसिकली क्लास ये जो आपके पास 9 प्रोसेस थे, इन प्रोसेस की बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि जो आपके पास वायरस है इट इज़ अ लिविंग। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोसेस मौजूद हों, इसमें से अगर सिंगल की कोई एक भी प्रोसेस किसी बॉडी में पाया जाता है इट मीन्स कि वायरस वो या कोई भी बॉडी क्या होगी, वो लिविंग है। सो बेसिकली क्लास इसमें आपको जो हम जब हम वायरस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं मिला, एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं मिला, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं मिलता। सिर्फ एक प्रोसेस है जो हमको मिलता है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन का भी पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है जब हम वायरस की बात करते हैं। तो इसमें रेप्लिकेशन टाइप होती है। रेप्लिकेशन भी कब होगी, जब वो वायरस अपनी होस्ट बॉडी में मौजूद होगा। होस्ट बॉडी जिसमें का मतलब क्या होता है, होस्ट बॉडी का मतलब होता है जिस बॉडी पर उसने इफेक्ट करना है, यानी कि उस पर जो भी बीमारी होगी उस पर अटैक करेगी, जिस बॉडी के अंदर वो मौजूद है वो उसका क्या है, वो उसकी होस्ट बॉडी है। जब भी वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर या स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर मौजूद होता है तो वो उसका होस्ट ऑर्गन या होस्ट बॉडी कहलाती है। तो उसी बॉडी के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर अ सर्टेन टाइम रेप्लिकेट करता है। दिस रेप्लिकेशन इज कंसिडर एज अ reproduction in it. So on the basis of this one, we can easily identify that this is belongs to the living organisms. आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास कि हमने यहाँ अभी तक ये पढ़ा है कि बायोलॉजी क्या है, यानी कि बायोलॉजी का मतलब है टू स्टडी अबाउट द लाइफ, टू स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमने ये पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, लाइफ क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 9 स्टेप्स या प्रोसेसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो कैसी बॉडी है, वो लिविंग बॉडी है। नाउ वी विल फोकस टूवर्ड्स द स्पेसिफिक डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब हम बेस करते हैं या बात करते हैं बेटा किसकी, स्पेसिफिक डिवीजन। किसकी डिवीजन है, डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिवीजन है बेटा इसमें, यानी कि मेन डिवीजन की हम बात करें कि जब हम बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं किसके अंदर, डिविजन्स के अंदर, तो बेटा हमारे पास 3 मेन डिविजन्स आती हैं। हम यहाँ वी टॉकिंग अबाउट द 3 मेन यानी कि मेन डिविजन्स, और मेजर आप कह सकते हो मेजर डिविजन्स जो आपके पास बायोलॉजी की हैं वो ये है। द फर्स्ट वन इज द बॉटनी, second is the zoology, the third one is the microbiology. I hope it is clear to you. I repeat it, first one is the zoology, botany and microbiology. So when we talk about the botany word is relating with this all thing means the plant and the zoo. When we spread this word, अगर हम zoology को
स्प्लिट आउट करते हैं तो बेटा आपके पास यहाँ दो टर्म्स बनते हैं. एक तो जू, जू मीन्स रिलेटिंग विद द एनिमल्स, लॉजी मीन्स द स्टडी और ऑब्जर्वेशन ऑफ द थॉट्स विच आर रिलेटिंग विद द जू यानी कि एनिमल्स. सो बेसिकली जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एनिमल्स while the botany is the study of the plants, and the last one is the microbiology. Microbiology is basically relating with the microorganisms here. अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को स्प्लिट आउट करते हैं तो पहला वर्ड आपके पास क्या कंसिडर होता है, माइक्रो. माइक्रो मीन्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. बेसिकली नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स द बॉटनी which is the major division of first one major division of the biology. So क्या है बेटा biology? The word botany is taken from the Greek लैंग्वेज बोटेन, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज क्या है, जैसे हमारे पास जबान है बहुत सारी, इस तरह से ग्रीक लैंग्वेज भी होती है. क्या नेम है उसका, ग्रीक लैंग्वेज मीन्स यूनानी जबान. उस जबान में बोटेन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स होता है. तो बेसिकली उसकी बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि बोटेन मीन्स प्लांट, और उसकी लॉगस मीन्स स्टडी, यानी कि उसकी स्टडी को, उसकी नॉलेज को, उसके ऑब्जर्वेशन को, उसके थॉट्स को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स. यानी कि प्लांट्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कंसिडर करते हैं. जब भी कोई भी आप आगे मूव करेंगे, जब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पर जब आप जाएंगे तो आपको एक परफेक्ट जो होगा एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा. तो आप उसमें बॉटनी भी कंसीडर कर सकते हैं या उसके बारे में भी सोचा जा सकता है. तो बॉटनी में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, यू विल मूव टूवर्ड्स दी प्लांट स्टडी, यानी कि प्लांट्स का शेप कैसा है, कैसी ब्रांचेस है, किस तरह का टेक्सचर होता है, कौन से प्लांट्स किस जगह पे पाए जाते हैं, कैसे किस में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये सब ऑल ओवर द थिंग वी विल स्टडी अबाउट इन द specific branch, a major division which is the botany. So class, now we will focus towards another one which is the zoology. Zoology means, zoo means animals, zoo means animal here, logy means the study. So basically what is the zoology? Zoology means the study of the animals. अगर हम इसको describe करें कुछ इस तरह से, the word zoology is derived from Greek language. But zoology भी आपके पास कहाँ से आया है, यूनानी जबान से लिया गया है zoology का word, which means zoon. Zoon का मतलब क्या होता है, animals, and the logos means the study or the knowledge or the observation or the thoughts about the specific animal. So basically it deals with the study of animals. So जब भी हम zoology की बात करते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, we're talking about the animal behavior, animal life, कि animal किस तरह से खाते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं. दीज आर ऑल रिलेटिंग विद द जोलॉजी. तो इसका मतलब हम क्या है, हम क्या रीड कर रहे हैं, जोलॉजी रीड कर रहे हैं. याद रखिएगा बेटा, here we talking about the major divisions of the biology. तो major division of the biology, the first one is the botany, the second one is the zoology. Zoology is relating with the study of the animals, because the meaning of the zoo is the zoo, or the zoo is equals to the animals. Now the third one is the major third one division which is the microbiology. Okay, जब microbiology को बेटा divide करते हैं, micro means very small. Microbiology is relating with the very small object, reading or study or knowledge as well. So micro means the microorganism. Micro का मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, microorganisms की बात कर रहे हैं. So microorganism का मतलब क्या है कि वो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा छोटे हों, एंड जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी इजीली सीन बाय द हेल्प ऑफ आवर नेक्ड आई. सो वी विल यूज अ स्पेसिफिक टूल, apparatus, equipment, we call that a specially equipment, माइक्रोस्कोप. तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं. आई रिपीटेड, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स द स्टडी. तो हेयर वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ. तो किसकी लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में विच आर वेरी स्मॉल, विच आर वेरी माइक्रो. माइक्रो का मतलब आपको बेटा पता है ना क्या होता है, वेरी स्मॉल. सो ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज्यादा, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि वो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम वह माइक्रोबायोलॉजी को कंसीडर करते हैं. यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा एनिमल नहीं बोलते, हम इनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, उनकी स्टडी करने को, उनकी ऑब्जर्वेशन को, उनके थॉट्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एक्सेट्रास. तो बेटा इसमें आपके पास क्या है, जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया आपको विजिबल नहीं होते, वायरसेस आपको विजिबल नहीं होते, इस तरह की बहुत सारी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे. तो उन जो
उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू बी यूज किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, टूल है। बाय द हेल्प ऑफ दिस apparatus tool equipment you can easily seen a specific micro organisms। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो बेटा माइक्रोबायोलॉजी के लिए मेन कंपोनेंट क्या हो गया कि आपके पास माइक्रोस्कोप होना लाजमी है। माइक्रोस्कोप की स्टडी के बेस पर ही हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस चीज की स्टडी करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि आपके पास कैसे फोकस करें, अब आप आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो क्या क्या हैं। बेटा याद रखिएगा, बायोलॉजी आपके पास जो है वो एक डिसिप्लिनरी है, यानी कि आपके पास बायोलॉजी दूसरे ब्रांचेस या दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक करती है और उसके साथ लिंक करके एक ब्रांच फॉर्म करती है। ठीक है जी। सो आपके पास जो कुछ ब्रांचेस गिवन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा, सो द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अदर a description of the living things. Advanced research during the 20th century has led to the division of the biology in the specialized branches। यानी कि 20th century के अंदर 20th century के अंदर तक आपके पास जो ब्रांचेस डिस्क्राइब हुई हैं या उन्होंने रिसर्च की बेसिस पे स्पेशलाइज की हैं वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वो कौन कौन सी हैं, द फर्स्ट वन इज द मॉर्फोलॉजी। Morphology means the study about the external. Anatomy means to study about the internal structure. Cell biology is relating with the study of cells. Histology is relating with the study of tissues. Physiology is relating with the to study of specific organs function, किसी functions के बारे में study करना organ की कहलाता है। Taxonomy is relating with the classification on the basis of the characteristics of any animal or any living organisms. Genetics is relating with the hereditary characters which are developed from the parents and move towards the from parents to of their offsprings. Then the paleontology is relating with the fossils, means those animals and plants which are present in the remote past. Then biotechnology means those type of the technology which are relating with the biology and very useful for our science lab. So basically, the other one is the sociobiology. Social means social. This is relating with the biology. And the next one is the parasitology. Parasitology means which are relating with the parasites. Its study is relating with the parasitology. Pharmacology is relating with their drugs. So study about their drugs, their habits, their way of taking is called the relating with the pharmacology. Then the so these are all the branches of biology. So now I hope it is clear to your class. Now first of all we will focus toward the specific branches of biology. क्या क्या branches हैं हमारे पास biology की? So the first one branch is the morphology. बेटा morphology आपके पास क्या है, the study of external form and the structure of organism। किसी भी living organism के एक्सटर्नली स्ट्रक्चर को रीड करना या उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, उस पर रीड करना, उस पर रिसर्च करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होता है। सो सेम एज इट इज आपके पास एनाटॉमी है। एनाटॉमी अनदर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करना बाय of the living organism by cutting them open। तो ये क्या कहलाता है, इट इज रिलेट टू द एनाटॉमी। तो बेटा मैं आपको फिर से रिपीट करवाती हूँ कि आपके पास मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या मेजर डिफरेंस है। तो बेटा जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हेयर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम रीड करते हैं। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर रीड आउट करते हैं। बेटा याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको रीड करने के लिए या उसमें स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन के लिए आप उस लिविंग बॉडी को क्या करना पड़ेगा, कटिंग देम ओपन। तो जाहिर सी बात है आपको उसको कट करके ओपन करना पड़ेगा, तभी तो आपको उसके इंटरनल पार्ट्स नजर आएंगे इजीली। सो बेसिकली एनाटॉमी इज रिलेटिंग विद द लिविंग बॉडी मींस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द स्पेशल पार्ट विच आर इंटरनल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये आपको कैसे मिलेंगे, बाय कटिंग देम ओपन। तो बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास, जैसे अगर आप प्लांट्स की स्टडी करते हो, प्लांट्स में एक पार्ट उठा लेते हैं कि जैसे आपके पास लीफ है, ठीक है जी। अगर हम उसको लीफ को अपने सामने रखिए, इसको एक्सटर्नली रीड करना स्टार्ट करें, उसके स्ट्रक्चर को, भाई इसका उसको आपके पास कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसमें आपके पास थिकनेस कैसी है,
इसके अलावा उसके स्टोमेटा जो होंगे उसके लोअर साइड प्रेजेंट होंगे, तो आप उसको क्या रीड कर रहे हैं, आप उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रीड कर रहे हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। आप उस क्या रीड कर रहे हो, मॉर्फोलॉजी रीड कर रहे हो उसकी लीफ की। अगर हम सेम लीफ की ही बात करें, उसमें एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अब हम उस बॉडी यानी कि उस लीफ का इंटरनल पार्ट स्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करेंगे। तो बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लीफ को कटिंग दैम ओपन, उसको काटना पड़ेगा और उसको ओपन करना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो हम इसके जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स रीड आउट करते हैं तो बेटा हमें बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, गार्ड सेल्स, स्ट्रोमेटा देखने को मिलता है, एपिथेलियल क्यूबाइडल सेल देखने को मिलते हैं। ये सारे सेल्स आपके पास क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये सेल्स आपके पास कैसे विजिबल थे, क्योंकि आपने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बॉडी का, तो वो किस में लाई करता है, वो एनाटॉमी में लाई करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स अनदर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच इज द सेल बायोलॉजी। बेटा सेल बायोलॉजी बिल्कुल सिंपल है क्योंकि सेल का वर्ड आपके सामने मौजूद है। द सेल बायोलॉजी इज टोटली रिलेटिंग विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइज। सो आप यहाँ पे क्या स्टडी करते हो बेटा, सेल के बारे में स्टडी करते हैं और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उसके बारे में स्टडी करोगे, तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब सेल के बारे में स्टडी करना बेटा याद रखिएगा, आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स मौजूद हैं हर ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेल्स मौजूद हैं। बेटा अगर आप अपनी आई की बात करते हैं तो आपकी आईज के अंदर एक ऐसे इस टाइप के सेल्स मौजूद हैं विच आर वेरी विच हैव द एबिलिटी टू सी, यानी कि इसके अंदर क्वालिटी है या एबिलिटी है या वो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए कि वो देख सकते हैं, यानी कि देखने को उस काबिल बना सकते हैं। सेम एज इट इज आपके हेयर, आपकी नोज, आपके लंग्स, आपके टीथ, आपके जो ब्रेन है उसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, सब जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन्स की बात कर लें या स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वो आपके पास जो वहाँ पे यूनिट यानी कि सेल मिलेगा वो क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन आपने क्लास 6 में पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, यूनिट स्ट्रक्चर है। यूनिट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अगर हम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बात करते हैं तो उसका यूनिट स्ट्रक्चर यानी कि सेल क्या है, न्यूरॉन्स है। बेसिकली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करते हैं और लंग्स को हम कहते हैं कि लंग्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, आपके पास एल्वुलाई है, वो उसका क्या है, वो उसका सेल है, यानी कि एयर सक है। तो बेसिकली क्लास हर जगह का हर ऑर्गन का सेल डिफरेंट होता है हर डिफरेंट ऑर्गन से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको किस में लाए करते हैं, सेल बायोलॉजी में लाए करते हैं। सिर्फ सेल की स्टडी करना और उसके इंटरनल पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। I hope it is clear to you class. Now we will focus towards another branch of the biology which is the histology. Okay, class the histology is जब हम histology के वर्ड को split करते हैं तो logy means the study is the observation or the thought। जब हम बात करते हैं histo की histo means का मतलब क्या है, which is relating with the tissues, यानी कि हम यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं, here we study about the tissues of the different types of the plants and the animals as well। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। किन के टिश्यूज की, प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा सेम काइंड्स ऑफ द सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म अ स्पेसिफिक टिश्यू। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं। तो उन टिश्यूज की स्टडी यानी उन टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आप जब भी किसी प्लांट का स्ट्रक्चर उठा लें या एनिमल का स्ट्रक्चर उठाएं तो वहां पे जब आप किसी ऑर्गन को ओपन करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज आपको मिलेंगे। तो बेटा याद रखिएगा जिस तरह का अगर आप एक ऑर्गन लेते हैं जस्ट लाइक स्टमक आप ले लो, ठीक है जी। अगर स्टोमेटा भी ले सकते हैं रिलेटिंग विद द प्लांट्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आप ले लो स्टमक। तो बेटा स्टमक के अंदर भी आपके पास एक तरह के जो टिश्यूज होते हैं नहीं मारे जाते, वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं, क्योंकि बेटा स्टमक के अंदर की भी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट मल्टीपल पर्पस होते हैं। स्टमक आपके पास ऑर्गन तो एक है लेकिन इसमें टिश्यूज डिफरेंट हैं। कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो HCl रिलीज कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे हैं बाय आपके पास कुछ ऐसे आपके पास मौजूद हैं सेल्स जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइनिंग फॉर्म कर रहे हैं। एज वेल एज आपके पास कुछ ऐसे सेल्स या टिश्यूज मौजूद है एपिथेलियल सेल्स हैं, यानी कि उसको कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज फॉर्म करते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। कुछ मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये सारे टिश्यूज कहाँ मौजूद हैं, ऑल फाइंड इन द स्टमक, यानी कि स्टमक एक स्पेसिफिक ऑर्गन में तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर
डिफरेंट टिश्यूज मौजूद हैं। ऑर्गन एक है लेकिन टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के हैं और हर टिश्यूज का स्पेसिफिक फंक्शन है। तो बेसिकली क्लास उस टिश्यूज के बारे में स्टडी करना जो किसी भी प्लांट्स के, एनिमल्स के किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? इट इज टोटली लाइव और रिलेटेड विद द histology. I hope it is clear to you, class. Now we will focus towards another branch of the biology, which is the physiology. Beta, physiology क्या है? Basically physio means relating with the function of the living organism. तो बेटा, the study of about the functions of the living organism is relating with the physiology. Physiology को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? Suppose कीजिए there is an example of a kidney. अगर हम कहें कि किडनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा किडनी आपके पास क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो वो हम किस में ले सकते हैं? एनाटॉमी में ले सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ उसके बारे में स्टडी ही करें और उसके साथ साथ उसके फंक्शन के बारे में भी स्टडी करें, तो हाँ, हम क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी का भी काम कर रहे हैं। यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर किडनी है तो सिर्फ किडनी की रीडिंग, किडनी के बारे में स्टडी करना, उसके सेल, उसके टिश्यूज के बारे में स्टडी करना ही काफी नहीं है, वो आपके पास एनाटॉमी में आता है। अगर आप उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फंक्शन, कि आपके पास जो किडनी है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द किडनी? टू फिल्टर तो ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है। इसके अलावा उसके इंटरनल पार्ट जो है, नेफ्रॉन्स जो है, उसका यूनिट है, जैसा सेल, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है आपके पास? वो नेफ्रॉन कहलाता है किडनी का। तो बेटा उसका फंक्शन क्या होता है? उसके जितने एक एक ऑर्गन जो मौजूद है, हर हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन को रीड आउट करना, स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? विच आर ऑल रिलेटिंग विद द फिजियोलॉजी, क्लास. Now we will focus on other type of the branches of the biology. The next is the taxonomy. Okay, what is the taxonomy? जो बेटा हम taxonomy की बात करते हैं, taxonomy क्या है? एक तरह की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है, डेफिनेटली. सो बेसिकली जब हम taxonomy की बात करते हैं, it is relating with the study of the rules, principles, ग्रुपिंग एंड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बेटा हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं टैक्सोनॉमी में कि किस तरह के रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग और नेमिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस तरह ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसकी स्टडी को, या उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम उसकी स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी. सो देयर इज एन थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं अगर आपके साथ शेयर करूं. टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटिंग विद दी क्लासिफिकेशन. यानी कि जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रुप को उसकी ऑन द बेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? स्प्लिट आउट करते हैं. सपोज कीजिए भाई आपके पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, तो हमने इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया, यानी कि हमने इनको क्या दी थी कि भाई ये प्लांट्स है और ये आपके पास एनिमल्स हैं. स्टार्टिंग में हम सबको क्या कहते थे? ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब हम वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि हम एनिमल की बात कर रहे हैं. वी टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और व्हाट अबाउट. सो इसको हम क्लासीफाई करने के लिए, अपनी स्टडी को और सिंप्लीफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं. टैक्सोनॉमी के में हम क्या पढ़ते हैं कि हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज कि जो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव कर सकते हैं, उनको हमने एनिमल में कंसीडर कर लिया. जो ग्रीन कलर की होंगे, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उनको हमने प्लांट से कंसीडर कर दिया और स्पेसिफिक नेम दे दिया और कंसीडर कर दिया ये ग्रुपिंग है. यहाँ पे क्या है? ये आपके पास प्लांट्स है. सेम एज इट इज आपने एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को इस तरह से आपने क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया. तो बेटा क्लासीफाई क्यों किया जाता है? ताकि स्टडी को आसान बनाया जा सके और उनको बेहतर तरीके से समझा जा सके. बेसिकली इट इज ऑल रिलेटिंग विद दी टैक्सोनॉमी. So now we will class focus towards the genetics. अच्छा ओके जी, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स अनदर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी. जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? ये आपके पास क्या है? बायोलॉजी की एक और ब्रांच है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में हम करते हैं स्टडी अबाउट द जीन्स, यानी कि जीन्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है. द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी की स्टडी करना एंड that is transferring from the characters from the parents to the offspring. यहाँ बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हेरिडिटी की स्टडी करते हैं. हेरिडिटी का मतलब है वो स्पेशल आपके पास चीज़ें या वो आदाब या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको कहाँ से मिली हैं? अपने पेरेंट्स से मिली हैं और वो पेरेंट्स से कहाँ मूव कर गई हैं? और टू देयर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड के अंदर मूव की हैं, यानी कि जो आपको हेरिडिटरी के अंदर पहले से मिली हैं. कलर कलर कंटोर, इसके अलावा आपके पास जो हेयर स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी
इसका साइज, हाइट, ये लेवल सब कुछ आपके पास क्या है, जिस ऑल रिलेटिंग विद द जेनेटिक्स। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलती हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना, हेरिडिटरी स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑल रिलेटिंग विद द जेनेटिक्स। So now we will focus towards another branch of the biology, which is the developmental biology. Okay, developmental biology beta क्या है? Developmental biology is relating with the study of formation and the development of the embryo. Basically class, अगर हम इस लाइन को दोबारा रीड करते हैं, व्हाट इज द लाइन? द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, किस तरह से फॉर्म होता है, एंड डेवलप, और किस तरह से डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है बेटा? द वर्ड एम्ब्रियो इज रिलेटिंग विद द स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पाया जाता है, तो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ठीक है जी। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी बर्थ कैसी होती है, यानी कि आपकी फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो आपके पास क्या होता है, वो डेवलपमेंट में आप स्टडी करते हो। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, देयर इज अ स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एज वेल एज इन द डेवलपमेंट। तो बेटा जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ आपकी कब होती है? जब किसी की बर्थ हो जाती है, बर्थ के बाद जब कोई ग्रो करेगा तो वो हम इसको ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। सो बिफोर बर्थ, अभी बर्थ हुई नहीं है, तो बर्थ से पहले जो स्ट्रक्चरल चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं, मींस द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी, और जितने भी ऑर्गन्स बनने होते हैं उसकी फॉर्मेशन को और उसकी डेवलपमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आता है, और उसको हम कहते क्या है? बिफोर द बर्थ हम इसको कंसिडर करते हैं, दिस इज द एम्ब्रियो। So now basically now we will focus towards another branch of the biology, which is the environmental biology. Environmental biology आपको वैसे ही ना समझ में आता होगा, which is relating with the environment. तो हम ऐसी बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि इन्वायरमेंट का इंट्रक्शन देखते हैं विद द स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास। आई रिपीट इट, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि ताल्लुकात के बारे में पढ़ते हैं। किन के ताल्लुकात के बारे में? देखिए पहले आपके पास क्या है? बायोलॉजी। तो आप यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होंगे। एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके नॉन लिविंग फैक्टर्स के, यानी कि एनवायरनमेंट का कैसा असर होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, उसके बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो बेटा जैसे आपका ताल्लुक दूसरों से किस तरह से है, यानी कि एनवायरनमेंट आपका कैसे है, आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकते हो, तो ऑल आर रिलेटिंग विद द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ द बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, विच इज द पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी बेटा इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, विच इज द विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल्स। बेसिकली क्लास पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? पैलियोंटोलॉजी आपके पास है which is relating with this type of the animals which are only plants and animals which are only found in the remote past. So अगर हम प्लांटोलॉजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एनिमल्स की स्टडी करते हैं और प्लांट्स की स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से एनिमल्स और कौन से प्लांट विच आर प्रेजेंट इन अ रिमोट पास्ट, जो हज़ारों साल पहले मौजूद हुआ करते थे और अब उनकी बॉडी किस फॉर्म में मौजूद है? इन अ फॉर्म ऑफ द फॉसिल, फॉसिल्स की फॉर्म में मौजूद थे। तो बेटा फॉसिल्स की स्टडी करना, यानी कि एनिमल्स के फॉसिल्स या प्लांट्स के फॉसिल की स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद उसमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये आइडेंटिफाई करना क्या स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं अभी जो आपके पास एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं, उस जब आप उसको कंपेयर करते हो रिमोट पास ऑर्गेनिज्म से, तो आप आइडेंटिफाई करते हो सब। इसमें आप क्या रीड कर रहे होते हो, किस ब्रांच के अंदर रीड करते हो? पैलियोंटोलॉजी के अंदर आप रीड कर रहे हो। तो पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि जो किसी जमाने में जमीन पे पौधे या फिर प्लांट या एनिमल्स हुआ करते थे और अब वो किस फॉर्म में है? एज बेस्ड ऑन दी फॉसिल्स, वो फॉसिल्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं। तो उन फॉसिल्स, तो फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ animals, plants, fungi, bacteria and the specific cells living things. तो उन एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरियाज और आपके पास फंजाई, उनके बारे में स्टडी करने को, उनके फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो पैलियोंटोलॉजी आपके पास दो तरह से भी डिवाइड होती है, जू पैलियोंटोलॉजी और बोटेनी पैलियोंटोलॉजी। उसमें आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हो, दूसरे में आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो। सो नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स अनदर
branch which is the biotechnology. Biotechnology में बेटा आप क्या रीड करते हैं? It is the study of the techniques of the manipulating the genes of to bring the changes in the structure of the location of the genes to achieve the desirable characters and etc. तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आप टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेक्नोलॉजी को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल हो, वो आप क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी में कंसीडर किया जाता है। ओके, सोशियो बायोलॉजी उसके बाद आता है आपके पास ब्रांच सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? सोशियो बायोलॉजी में बेटा आप पढ़ते हैं किसके बारे में? Basically it is a field of the biology that aims to examine and explain the social behavior in the term of the evolution. Means the sociology यानी कि social biology में आप क्या पढ़ते हो? Means social behavior of any living organism. तो यानी कि स्टडी करते हैं किसके बारे में? सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके सोशल बिहेवियर के बारे में? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर के बारे में कि उसका समाज से किस तरह का ताल्लुक है, वो किस तरह से बिहेवियर शो करता है, इंटरेक्शन करता है एक दूसरे के साथ। तो इसमें हम सोशल बिहेवियर के बारे में, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर के बारे में, समाजी ताल्लुकात के बारे में स्टडी करते हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? इट इज रिलेटिंग विद दी सोशियो बायोलॉजी। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड द पैरासाइटोलॉजी। बेटा पैरासाइटोलॉजी क्या है? सिंपली द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट की स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब बेटा पैरासाइट होती क्या है बेटा? सो पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब है पैरासाइट के बारे में स्टडी करना। दे आर होस्ट यानी कि जिनके अंदर वो पाए जाते हैं, उनके होस्ट के बारे में स्टडी करना और उन दोनों के रिलेशन के बारे में स्टडी करना। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। बेटा पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ मौजूद होते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं और वो उस बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, फायदा भी पहुंचा सकते हैं। डिपेंड्स, तो बल्कि ज्यादातर वो नुकसान ही पहुंचाते हैं पैरासाइट्स क्योंकि होते हैं वो। बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं तो वो अपने होस्ट यानी कि जिस बॉडी या जिस लिविंग बॉडी के अंदर वो मौजूद होते हैं उस लिविंग बॉडी को हम होस्ट बोलते हैं। तो अपनी तो होस्ट से पैरासाइट का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करना, ये पैरासाइट के बारे में या उसके होस्ट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाता है ना। जैसे अर्थवॉर्म है आपके पास सेक्स्ट्रास। तो अब आपके पास क्या है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली रिलेट करते हैं बेटा द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मीन्स द एक्शंस ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, अद्वियात। तो जो दवाइयाँ होती हैं उसका एक्शन किस तरह का परफॉर्म होता है, वो किस तरह का इफेक्ट कॉज करती है किसी भी बॉडी के अंदर। इसके अलावा बेटा वे ऑफ टेकिंग यानी कि किसी भी ड्रग को लेने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो बेटा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बाय द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं, कुछ हम टेबलेट की फॉर्म में लेते हैं, कुछ आपके पास ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मतलब अब जबान के नीचे रखते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है। तो डिफरेंट वेज हैं किसी भी ड्रग को लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो उसके इसमें और वो आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती है। कुछ आपके पास पेन किलर्स भी हो सकती हैं। तो इसमें हम सब के बारे में स्टडी करते हैं विच इज रिलेटिंग विद द फार्माकोलॉजी। Now the last one is the molecular biology. Molecular biology में हम स्टडी करते हैं स्पेशली विद रिलेटिंग विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स में स्टडी करने का मतलब है कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा दिस ब्रांच इज रिलेटिंग विद द बायोलॉजी एज वेल इट इज रिलेटिंग विद द केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बेटा हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलती है? ज़्यादातर प्रोटीन से बनी है। तो प्रोटीन का जो स्पेसिफिक यूनिट या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके पास आता है उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो आपस में कंबाइन होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो सिंपली इट इज द इंटरेक्शन या ओवरलैपिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस इज द सब्जेक्ट। द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज द biology and as well as the chemistry. I hope it is clear to you, class. Now we will focus towards the home task. The home task of the chapter number 1 is the introduction, which is the introduction to biology. The home task is you have to define the biology. आपने biology को define करना है with its major division. Major divisions आपको पता है कौन कौन सी है? zoology, botany and microbiology. तो आपने biology को define करना है, उसकी major जो division है उसको define करना है. The next question is the explain other branches of the biology. जितने भी आपको branches आपकी book में given है आपने उसको पढ़ना है, याद करना है, लिखना भी है और उसको याद भी करना है.
एज वेल एज द थर्ड वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो बेटा आपको पता है जब हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हेयर वी टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जब हम इंटरनली किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हेयर वी टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी। सो स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, आपके पास कॉपी आपने कवर करनी है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से, जो आपके पास उसके बाद आप आउटर शीट कंप्लीट करोगे। आउटर शीट में आप स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखेंगे। इनर शीट फेस कंप्लीट करेंगे। इनर शीट कौन सी होती है, जो आपके पास जब आप कॉपी को ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज होता है वो आपका इनर शीट होता है, जिसमें आप स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टीचर नेम, क्लास और क्लास टीचर नेम लिखेंगे। उसके बाद बेटा आप क्या बनाएंगे, यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज फॉर अ फर्स्ट टर्म। आप फर्स्ट टर्म के लिए टाइटल पेज बनाएंगे और आप लिखेंगे अगस्त टू नवंबर 2021 टू 2022। तो उसके बाद आप याद रखिएगा बेटा मिड टर्म का टाइटल पेज नहीं बनेगा, इसका टाइटल पेज फॉर अ फर्स्ट टर्म। इसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे किसका, चैप्टर यूनिट का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद आप मार्जिन ड्रॉ करेंगे 1 इंच। आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास। थैंक यू।